Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying the chapter 2 of your history book, Nationalism in India. In the previous video, we had studied about the First World War and also we had studied about the idea of Satyagraha and we had noted down your notes. Now today we will start the Rowlatt Act. This is the page number 31. Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a battle on 6th April. Rallies were organized in various cities, workers went on strike in railway workshops, and shops closed down. Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful protest, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. चिल्ड्रन रोलेट एक्ट में क्या हुआ कि यह डिसाइड कर दिया गया कि कोई भी लोग जो को बंदी बना लिया जाएगा और उनको 2 साल का कारावास दे दिया जाएगा बिना किसी न्याय की कार्रवाई के। और इसके लिए अपोजिशन जो थी उस वक्त कोई उससे सलाह मशवरा नहीं किया गया और सीधे जो असेंबली की काउंसिल थी उन्होंने ब्रिटिश मेंबर्स जो थे उन्होंने मिलकर के ये रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। तो गांधी जी जो पहले से ही आंदोलन करते चले जा रहे थे सफल भी हो रहे थे, तो वो 1990 में उन्होंने बोला कि हम सत्याग्रह के द्वारा इस एक्ट का विरोध करेंगे और इसके लिए उन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करने का फैसला किया कि इस अनजस्ट लॉ जो है इसके विरोध में हम इस तरह से जो है विरोध उसका करेंगे और यह जो था 6 अप्रैल को स्टार्ट होना था। अब उस वक्त में क्या होने लगा कि रैलीज़ वगैरह लोग करने लगे, वर्कर्स ने स्ट्राइक्स कर दी, काम करना बंद कर दिया, शॉप्स को बंद कर दिया। तो ये सारा हड़ताल वगैरह का विरोध करने के तरीके थे और लोग उस वक्त कर रहे थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था उन्होंने कहा कि यह नेशनलिज्म की जो मूवमेंट है इनको हमें डाउन करना होगा और इसके लिए उन्होंने अमृतसर में जो लोकल के लीडर्स थे उनको बंदी बना लिया। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया और 10 अप्रैल को अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने गोलियां दाग दी। इसका विरोध हुआ। जैसे ही लोगों को पता चला, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशंस, बैंक्स, इनके ऊपर लोगों ने बहुत बड़ी ही मात्रा में बहुत वृहद पैमाने पर अटैक्स चालू कर दिए। तो फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया, उसे दबाने के लिए फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डॉयर को इसकी कमांड सौंप दी गई। चलिए नोट्स देखते हैं। द रॉलेट एक्ट। When the Rowlatt Act 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council in spite of unanimous opposition of the Indian members, Gandhiji's patience comes to an end. Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a hurtle on 6th April. 6th April 1919 was observed as a Satyagraha Day when people all over the country observed fast and hurtle. 1919, the country witnessed a remarkable political awakening in India. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi.
On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks. चिल्ड्रन, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 1990 में रोलेट एक्ट पास किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसे बहुत ही जल्दी में पास किया, जो कि इंडियन मेंबर्स जो थे उनके अपोजिशन से उन्होंने कोई सलाह नहीं ली। और इसके बाद गांधी जी का जो पेशेंस था, धैर्य था, वो समाप्त होने लगा। और 6 अप्रैल को फिर उन्होंने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट करने का ऐलान किया इस अनजस्ट लॉ के ख़िलाफ़ में। 6 अप्रैल 1919 को यह डिसाइड किया गया कि यह जो आंदोलन है वो शुरू किया जाएगा। सत्याग्रह डे उसे बोला गया और इसमें पूरी कंट्री में फास्ट रखने के लिए बोला गया लोगों को कि फास्ट रखेंगे और इसका शांतिपूर्वक हम विरोध करेंगे। फिर इसीलिए जो 1919 में जो कंट्री थी, हमारी देश था, वो रिमार्केबल पॉलिटिकल व्यू से बहुत ही ज़्यादा देखा गया। लोकल लीडर्स थे। अब जब इस तरह से सभी लोग करने लगे तो लोग शांतिपूर्वक रैलीज वगैरह भी लोग कर रहे थे। तो जो लोकल लीडर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी को दिल्ली में बैन कर दिया कि वो दिल्ली में एंट्री नहीं ले पाएंगे। और 10 अप्रैल को जो पुलिस थी उसने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, उस पर उन्होंने गोलियां बरसा दी और बहुत ज़्यादा जो इसके विरोध में फिर जो लोग थे वो हिंसात्मक हो गए। जलियांवाला बाग मैसेकर। A large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. People came to protest against government's repressive measures, while some came to attend the annual Baisakhi fair. General Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. The government responded with brutal repression, seeking to humiliate the and territory's people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets and do salam to all sahibs. अब जलियांवाला बाग क्या हुआ? जब रॉलेट एक्ट का विरोध इस तरह से हुआ और लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया, तो उसे दबाने के लिए फिर एक दूसरा लॉ लाया गया, मार्शल लॉ। और उसमें उन्होंने क्या किया कि वो जहाँ चाहें, मतलब जो पब्लिक थी, लोग सिटी में कर्फ्यू जैसा लगा दिया गया कि लोग सभाएं नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, इस तरह से। और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो जो जलियांवाला बाग था, वहाँ पर लोग जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे सभा करने के लिए लोग, और उसमें सिर्फ एक ही गेट था। तो बैसाखी फेयर का समय था, एनुअल बैसाखी फेयर का, और जो लोग थे वो इकट्ठे हुए। अब जनरल डायर को इसका पता चला तो उसने जितने भी एग्ज़िट पॉइंट थे, एक गेट ज़्यादा, उसमें एक ही गेट था और उसको उसने बंद कर दिए बाहर निकलने के रास्तों को, और उसके बाद उसने भीड़ पर गोलियां चला दी। तो उसका ये मानना था गवर्नमेंट ने, जब उससे पूछा गया कि इतना उन्होंने ब्रूटल क्यों किया, इस तरह का अत्याचार, तो उसने ये जवाब दिया कि हम लोगों को डराना चाहते थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उनको हम ये डर बैठाना चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी जाएगा उसका यही हाल होगा। तो इतना उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। और इसके साथ ही साथ जितने भी सत्याग्रही थे उनको बोला गया कि वो ग्राउंड में अपनी नाक को रगड़ें और स्ट्रीट्स में वो क्राउल करके चलें, और जितने भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स मिले उन सबको सैल्यूट दें। इस तरह का उन्होंने बोला जलियांवाला बाग के बाद। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था ही, जिसमें कि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। नाउ खिलाफत मूवमेंट, वी विल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो।